an array, students? How will you define an array? Collection of So recording not Collection of started. numbers Started. in one variable. collection of what? Similar Similar type of numbers. or type of similar type of elements, I can say, right? Right. Yes, sir. Second, what is Yes, sir. stored in continuous memory location. मतलब सबके सब will be stored in one after the other. For an example, अगर आपने बोला है integer a10, so you have reserved the memory for how many elements? How many values can be stored? Students, how many values can be stored here? Huh? 10. 10. 10. 10. And the first value will be stored at A0. A0 will have the first value. Any value, right? Integer value. And the last value will be stored where? At A9, right? A9. Yes. Why A9? Because you have started counting from 0. That's the reason the last value is going to be stored at A9, right? Is that clear, students? Yes, sir. Yes. Now, how will you assign the elements to these variables A0, A1, A2, A3? Either you can read them. There are two ways. Two ways to assign array variables. What are the two ways? Either here itself, I will not read, I'll write integer A5 and I can give the value 2, 4, 6, 8, 10. What is the meaning of this, students? Here, this meaning of this, whatever you have written here is like this. Here, this says A0 is 2, A1 is 4, A2 is 6, A3 is 8, and A4 is 10. Look at this. We started from 0. There are 5 elements started from 0. It will end up at A4, right? Students. Hello. Yes. So this is sir. one way of Yes, sir. storing the elements. This is one way of storing the elements inside the array. That means directly we can assign this. Second procedure is you should read them with the help of for loop. I'll write for I is equal to 0, I is less than 5, I plus plus, and then I'll write scanf %d ampersand ai. So this for loop will repeat this scanf 5 times as Tripathi has said कि sir आपको पहले से पता हो कि how many values you are reading, then you can go ahead with the for loop. So I know I'll be reading 5 values. So then if you are going to enter 5 values, first value will be stored at A0, that is I is 0. यहाँ पे first I is 0 आएगा तो A0 में दूसरा A1, तीसरा A2, A3 and A4. So which method is better according to you, the first method or the second method? Students. Second अच्छा है. क्यों अच्छा है भाई? Why the second is better? Let it go wrong. See, we are all learning together. कोड Right? कम लिखना पड़ता है सर. इट्स नॉट अ क्वेश्चन कोड कम लिखना पड़ता है. ये जो है तुम्हारे वैल्यूज आर स्टैटिक. मतलब ये वैल्यूज फिक्स हैं. अगर बाद में आपको वैल्यू चेंज करना है तो आपको फिर से प्रोग्राम में आना है एंड यू हैव टू चेंज द वैल्यूज. बट वेयर एज इन दिस यू कैन एंटर डायनेमिक वैल्यूज, राइट? आपको जो चाहिए वो आप एंटर कर दो, जो भी 5 वैल्यूज चाहिए, राइट? और वहां का 5 वैल्यूज ऑलवेज फिक्स स्टैटिक है, वो चेंज नहीं हो रहा है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे when you are reading you can enter 21 then 91 then 51 then 75 कुछ भी, और वहां there you cannot change. अगर आपको चेंज करना है तो बार बार कोड में आके ये 5 वैल्यूज रीटाइप करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज दोज वैल्यूज आर स्टैटिक. यहाँ पे these values are dynamic. Is that clear? Yes, Yes, sir. sir. यस. अगर आपको कोई पूछता है कि सर मुझे
10 नंबर का मीन निकालो। मीन पढ़ा है तुमने? मीन क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज मीन? इज सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर, राइट? Total number. Yes. Average, sir. How will you write this program? So how many values are you going to store here? I'll be using variable or an array? क्या यूज करना चाहिए मुझे? Array, sir. एरे स्टोर Array. करना, एरे मुझे यूज करना चाहिए, एरे यूज करना चाहिए। सो आई बी सी। तो अब ये प्रोग्राम के लिए जरा देखो, मुझे एक मीन निकालना है स्टूडेंट्स। चलो हम इसका डिसेक्शन करते हैं सबके साथ मिलके। मुझे एक एरे का जरूरत पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस सर। हाँ या ना? और मुझे क्या जरूरत पड़ेगा? मुझे एन का जरूरत पड़ेगा। आप कितने नंबर एंटर करने वाले हो? फिर जब एरे मिल जाएंगे तो एरे के सभी एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए मुझे एक सम का जरूरत पड़ेगा, राइट? Yes. Yes. यस और नो? यस सर। और जब सम निकल जाएगा तो एक वेरिएबल और चाहिए, एवरेज। वो कैसे आएगा? सम डिवाइडेड बाय एन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. और एरे है तो एक और वेरिएबल चाहिए, आई क्यों चाहिए सर आपको? व्हाई डू यू रिक्वायर आई स्टूडेंट्स? हेलो? For the loop. Numbers. It will start यस from zero. यस यस। अगर आपको 10 वैल्यू रीड करना है तो रीड कौन करेगा? आई, राइट? आई लूप भी करेगा, स्कैनएप को 10 टाइम्स रीड कराएगा, राइट? गेटिंग माई पॉइंट? आप समझ रहे हो कि ये प्रोग्राम में मुझे सब लोगों की क्या जरूरत है? इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. is this line is clear to everybody? Whatever I wrote just now, सबको समझ गया है लाइन? Yes, sir. Yes, sir. अब यस सर। ये लाइन समझ रहा है क्या? इंटीजर A10 नंबर चाहिए तो लो, नहीं तो चाहिए। देखो हम नंबर एक ले लेते हैं, हम बताएंगे। जैसे मान लो आ, हमने A20 रखा है या A50 रख दिया है, A20 रख दिया। हम यूजर को पूछ लेते हैं, थोड़ा प्रोग्राम को डायनेमिक करते हैं। यूजर को पूछेंगे बाबा कितने नंबर का आपको एवरेज ये निकालना है, एवरेज। हो सकता है यूजर मुझे 5 बोले, यूजर मुझे 4 बोले, यूजर मुझे 8 बोले, यूजर मुझे 10 बोले, जो भी बोलेगा, राइट स्टूडेंट्स? मैंने मेमोरी 20 के लिए रखा है, 30 के लिए भी रख सकता हूं, बट आई आस्क द यूजर हाउ मेनी नंबर्स का एवरेज यू वांटेड टू फाइंड आउट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो? Yes, sir. मैंने प्रोविजन एक्स्ट्रा है, नंबर में पूछने वाला हूं यूजर को, और जितने भी नंबर आएंगे उसका सम अभी 0 है। और एवरेज कैसा आएगा? वो फ्लोट होगा। एवरेज इज गोइंग टू बी फ्लोट एवरेज। इतना क्लियर है सबका? आप समझ रहे हो कि नहीं स्टूडेंट्स? जैसे मान लो सम आया 79, टोटल नंबर थे 6, तो इसका आंसर फ्रैक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Hello, sir. So you are not audible. Hello, sir. Your mic is on.
Sorry, student, there is a network problem from my end. Am I audible now? Yes, Hello? sir. Yes, sir. Yes, there was network problem Yes, from sir, you're my. audible. चलो ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला था कि आई एम कीपिंग एक्स्ट्रा प्रोविजन कि अगर बाद में किसी को ज़्यादा नंबर का भी एवरेज निकालना है वो हो जाएगा, बट मैं यूजर को पूछ लेता हूँ हर बार कि आपको 4 का एवरेज चाहिए, 10 का चाहिए, 20 का चाहिए। ओके, सो माई नेक्स्ट थिंग, आई होप यू ऑल मस्ट बी नोइंग क्लियर स्क्रीन। अब मैं यूजर को सबसे पहले पूछता हूँ Your प्रिंट एफ। screen is Sir, not you are visible. not presenting, sir. Screen is not visible. Just wait. Now it's visible. Yes, sir, now Yes, it's sir. visible. Now, before I'll find out the average, I will ask the user enter the total number or enter the number. My question here is I wanted to say tell me how many numbers ka average you wanted to find out. That is what my question is. Tell me how to write this. Question here is I am asking the user like you wanted to find out the average of how many numbers. Tell me Cap, how should I write this? Cap, Please enter the number of. क्या क्वेश्चन होना चाहिए? आई एम आस्किंग यूजर कि आपको I mean you want to find out the average of how many numbers, how many integers, right? Yes, sir. So आप ये statement आप अपना सब लोग frame कर लो, put it in your own words, and then user will be saying either 5, 6, 7, 8, whatever it is. I will read that number, right? तो यूजर ने मान लो मुझे 8 बोला है, यहाँ पे 8 बोल दिया सपोज। आई वांटेड टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स। यूजर कैन से एनीथिंग, आई हैव गिवन द फुल लिबर्टी। Then what do I require? I am going to use a for loop and this will run up to जो यूजर ने नंबर दिया है n तक जाएगा, लेस देन n, राइट? यूजर 6 बोलेगा तो 6 तक जाएगा, 10 बोलेगा तो 10 तक आएगा, राइट? गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? यूजर Yes, sir. 20 बोलेंगे तो 20 तक चलेगा। और अब मैं यूजर को बोल रहा हूँ सर अब आप मुझे नंबर दो, एक एक नंबर। जैसे यूजर ने बोला 8 नंबर का मुझे एवरेज चाहिए, तो मैं यूजर को बोल रहा हूँ चलो एंटर योर फर्स्ट नंबर, यूजर सेट 21, एंटर योर सेकंड नंबर, यूजर सेट 33, यू एंटर योर थर्ड नंबर, यूजर सेट 45, लाइक दिस, राइट? सो नाउ आई एम आस्किंग द यूजर की टू एंटर दोज 8 नंबर्स, enter number %d I plus 1. So I'm telling the user to enter your first number, enter number 1, 2, 3 and so on. Is that clear? Hello? Yes, Hello? sir. तो अब यूजर मुझे एक एक नंबर देगा और वो नंबर को मैं सबको प्यार से I'll keep it in A0, A1, A2, A3 and this will go up to less than 8, that means up to 7. ये 0 से चलेगा और less than 8 मतलब 7 में स्टॉप हो जाएगा, राइट? Yes or no? Yes, sir. And as and when suppose first time I is 0, I'll be reading A0, तो A0 को मैं वही टाइम पे I'll put it in sum. Is that clear? Yes, no? जैसे मुझे नंबर मिला मैं बोला तुम इधर बैठो, sit with sum. Then I'll go for the second number. When I'll get the second number, I'll bring that second number and I'll add that second number A1 along with previous sum. Is that clear? Hello? Yes, sir. जितने भी नंबर मेरे पास आते रहेंगे सबको मैं सम में ऐड करता रहूंगा। Is that clear? So as and when you finish entering the numbers, I am also ready with the sum of those numbers. मेरे पास sum भी ready हो गया। And once your sum is ready, you can find out the average is equal to sum जो भी है divided by the number of numbers user has entered, right? Is that clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. This line when it can be written once you are ready with the sum, and once you found out the average, then just you have to display average is equal to %f comma average, right? And then get ch and then close. Tell me if you have not understood any of this line. I will explain you once again, students. इसमें अगर कुछ भी आपको नहीं समझा आप मुझे पूछ लो. Any students, please not to carry the doubts. बोलो.
Anyone not understood anything, please ask. उपाध्याय, त्रिपाठी, क्या नाम था? त्रिपाठी, भव्या. Yes, Hello. sir. Understood? Yes, sir. Very good. And what about Kushwaha, Alok, Jitendra? Yes, sir. If you all have understood this, I will do the little changes in this. Little changes in this. Okay. Suppose somebody will also tell you find out the standard deviation. What is standard deviation? Is sum of x square divided by n minus x bar the whole square. ये पता है कि नहीं पता है? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. अगर ये पता है तो हमारे पास में वी नो व्हाट इज n, वी नो व्हाट इज x बार, मतलब एवरेज हमको पता है. हमको किसका पता करने का जरूरत है? सम ऑफ x स्क्वायर, राइट? Where? Yes, sir. यस. तो मतलब एक सम ऑफ, सी वी आर हैविंग सम ऑफ x, सम है मेरे पास में, तो मुझे एवरेज मिल गया है. और मैं एक और वेरिएबल ऐड कर रहा हूँ. जरा ये प्रोग्राम में देखना, जरा तुम लोग को नहीं समझेगा तो मुझे बोल देना. जस्ट व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम एडिंग वन मोर वेरिएबल हियर. ये है सम SQ, सम ऑफ स्क्वायर इज 0 राइट नाउ. व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर स्टूडेंट्स? अगर यूजर नंबर दे रहा है 21, 20, 31, 33, तो स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट? जो नंबर आएंगे उनका स्क्वायर चाहिए. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे मैं एक लाइन और ऐड किए दे रहा हूँ बिफोर आई क्लोज दिस. यहाँ पे जब नंबर आएगा तो मैं एक और लाइन लिख रहा हूँ, सम SQ इज इक्वल टू सम SQ प्लस AI इंटू AI. ये भी AI है, ये AI है. A0 ऐड होएगा, फिर A1 ऐड होएगा, और यहाँ पे ऐड भी सम के साथ में भी जाएगा और उनके स्क्वायर. स्क्वायर कैसे आ रहा है? देखो क्या किया, नंबर इंटू नंबर करके आपने स्क्वायर में डाल दिया, राइट? इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes. हुआ कि नहीं हुआ? अब एक और वेरिएबल अगर आपको समझ में आ जाए तो जरा नोट डाउन करके रखो. यहां पे एक और वेरिएबल मैंने डाल दिया SD. SD स्टैंड्स फॉर, SD स्टैंड्स फॉर Standard deviation. Standard Standard. deviation. आप देखो यहाँ पे एक और लाइन मैं ऐड कर रहा हूं. यहाँ पे आफ्टर फाइंडिंग आउट द एवरेज आई एम सेइंग SD इज इक्वल टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट, क्योंकि वहां पे स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है. फॉर्मूला पहले देख लो. फॉर्मूला इज अंडर स्क्वायर रूट सम ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x बार. तो स्क्वायर रूट तो यहां से आ जाएगा, एंड देन आई एम राइटिंग सम SQ डिवाइडेड बाय n माइनस एवरेज इनटू एवरेज. व्हाट इज एवरेज इनटू एवरेज स्टूडेंट्स? just like look at this, x bar, right? हेलो. Yes, sir. जरा आप इसको दोनों को मैच करके देखो हो रहा है क्या? अंडर स्क्वायर रूट्स सम ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस एवरेज माइनस x बार का होल स्क्वायर. हो रहा है वो आंसर? मैच हो रहा है स्टेटमेंट? yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now just I need to add one more statement here, and I will write printf standard deviation is equal to %f comma %f डबल कोट्स कंप्लीट कॉमा SD. तो देखो कैसा हुआ कि वही प्रोग्राम में आई डिड द चेंजेस, आई फाउंड आउट द स्टैंडर्ड डिविएशन आल्सो, राइट? यस और नो? Yes, sir. नाउ somebody may ask you, sir, can you find out the variance? Variance is nothing but standard deviation का square. Variance is what? Standard deviation का square. सुना है कि नहीं सुना है?
Hello. Yes, sir. So now you have already found out the variance standard deviation. I'll declare one more variable variance. यहाँ पे देखो एक variance करके एक variable और declare किया है. दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? Hello. Hello. Yes, Yes, sir. sir. Students. अभी मुझे मेरा जब स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया है, कहाँ पे आया है? जब ये लाइन मैंने ऐड किया था, ये वाला, यहां पर ही मैंने लिख दिया एक लाइन, वेरिएंस इज इक्वल टू एस डी इंटू एस डी. देखो एस डी आ गया, तो देन आई रोट नेक्स्ट लाइन, वेरिएंस इज इक्वल टू एस डी इंटू एस डी. तो व्हाट यू गॉट नाउ? वेरिएंस, राइट? Yes. एंड देन इफ समबडी इज आस्किंग यू कैन यू प्रिंट दैट, फिर मैंने एक लाइन यहां ऐड कर दिया, प्रिंट एफ वेरिएंस इज इक्वल टू परसेंट एफ कॉमा वेरिएंस, राइट स्टूडेंट्स? Yes. हेलो. चलो नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं. Yesterday we have written, or I think day before that we have found out the number of numbers below average and above average, right? किया था ना मैंने? Sir, can you show the last program once again? I want to take screenshot, sir. बट आपको समझेगा मेरा सब इसमें रफ वर्क समझ जाएगा. हाँ sir. Just have added new things here, that's all. ठीक है? Yes, Yes. sir. Yes. Now students, you take 10 numbers from the user, 10, 20, whatever it is, and what you do after taking 10 numbers, find out their average. And then you count how, like suppose the average is say 67. So how many are below average and how many are above average? You need to count this. हमने शायद ये प्रोग्राम किया था, राइट? किया था ना? हेलो. अगर नहीं किया है तो you write down the program. Program is to find out the average of set of numbers, and then after getting the average, count the number below average and count the number above average, right? ये below average वाले रहेंगे और ये above average वाले. Is that clear? Average can be Yes. anything. Average can be anything. So what all things I require to complete this program? मुझे एक I चाहिए, मुझे एक array चाहिए, मुझे एवरेज निकालने के लिए पहले सम चाहिए, राइट? यस, नो स्टूडेंट्स? एंड देन Yes, sir. मुझे एक एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज. तो चलो लेट अस राइट डाउन द प्रोग्राम. प्लीज राइट डाउन द प्रोग्राम. इफ आई एम फास्ट देन ऑल्सो यू शुड टेल मी सर थोड़ा स्लो चलो. इज दिस लाइन इज क्लियर टू एवरीवन? सर यही एक Yes, लाइन sir. क्लियर, यही एक लाइन अभी तक क्लियर हो रहा है लास्ट 1 मंथ में. इज दिस लाइन इज क्लियर? इंटीजर I, integer A 10, sum is 0. Above average, right now the count is 0. Below average, count is 0, right? ये सब क्लियर है अभी? Yes. अभी एवरेज क्या है? नो आइडिया. सो आई एम हैविंग फ्लोट एवरेज, फ्लोट एवरेज, एंड देन व्हाट इज टू बी डन? फिर से उसके जैसा करना है पीछे वाले प्रोग्राम के जैसे कि यू वांटेड टू वर्क आउट दिस प्रोग्राम फॉर हाउ मेनी नंबर्स, दैट आल्सो यू कैन डू. और इफ यू वांट टू वर्क आउट ओनली फॉर 10 नंबर्स देन यू कैन गो अहेड. क्योंकि पीछे वाले प्रोग्राम का एडवांटेज क्या था स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपने जब ये क्वेश्चन पूछा है, लुक एट दिस, आई विल हाईलाइट दिस पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जब आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ये वाला पार्ट, राइट? ये जब किया है आपने कि टेल मी हाउ मेनी नंबर्स का योर मीन निकालना है आपको, तो यूजर में से फॉर 4 नंबर्स, 5 नंबर्स, 8 नंबर्स, राइट? बट यू हैव मेड अ प्रॉपर प्रोविजन. आपके पास जगह आपने बना के रखी है 20 के लिए, यूजर 20 तक भी जा सकता है. अगर वो हमें ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये वाला जो हाईलाइट किया है, और यहाँ पे डायरेक्ट 10 फिक्स कर दोगे, ये वाला मतलब जैसे फिक्स कर दिया मैंने 10, तो ये प्रोग्राम अच्छा रहेगा कि ये डायनेमिक वाला अच्छा रहेगा? क्या अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स? हेलो. Dynamic वाला sir.
हाँ, नहीं तो मतलब एक आपने एक स्टैटिक प्रोग्राम बना दिया। आप प्रोग्राम जब जब रन करो कि वो हर बार आपसे केवल 10 ही नंबर पूछेगा और वो 10 का ही एवरेज बनाएगा। अरे मुझे सर कम का एवरेज निकालना है तो क्या करूं मैं? मुझे 9 का ही एवरेज निकालना है, मुझे 4 का एवरेज निकालना है, मुझे 7 नंबर का एवरेज निकालना है, देन व्हाट? इसके लिए मैंने ये दो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैं यूजर को पूछ के फिर एवरेज निकालूंगा, राइट? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, हेलो? sir. और अगर आप नहीं पूछ रहे हो डायरेक्ट तो मतलब फिर आपने एक स्टैटिक प्रोग्राम लिखा है। वो स्टैटिक प्रोग्राम का आजकल डिमांड नहीं है स्टूडेंट्स रियल लाइफ में। डायनेमिक होना चाहिए रियल लाइफ में। तो हम यूजर को पूछेंगे कि आपको कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, पहले वो बताओ। सपोज वही प्रोग्राम दूसरी क्लास एसवाई में भी रन करना है, टीवाई में भी रन करना है, जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा प्लस माइनस होते रहते हैं। तो मेरा प्रोग्राम तो केवल एफवाई के लिए बनाया है, वो नंबर 100 फिक्स है, तो 1 से 100 तक रीड करेगा, एसवाई के लिए फेल हो जाएगा। तो बेटर है कि आई कैन आस्क द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एवरी टाइम, राइट? कैफ अली, Yes, sir. Yes, sir. समझ रहा है मेरी बात? हाँ, तो इसके लिए मैंने एक एन का प्रोविजन रखा है यहाँ पे, एन। ओके, तो मैं क्लियर स्क्रीन कर रहा हूं। देन अब मैं पूछने वाला हूं, यहाँ 10 मत रख दो, फिर और थोड़ा साइज बढ़ा दो। हो सकता है 50 बच्चे भी हों, 100 बच्चे भी हों, ये साइज बढ़ा दो जितना भी होएगा। कोई 50 का भी करेगा तो भी होगा, 10 का करेंगे तो भी होगा। तो प्रिंटफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका आपको एवरेज निकालना है। तो मैंने रीड किया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स %d %n। I got to know how many students are there in the class. 10 है, 20 है, 100 है, 80 है, 89 है, anything can work out. अब मुझे फॉर लूप यूज करना है एंड वो सब स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए। कहाँ से? 0 से n तक। ये देखो, ये n। आप जो ये रीड करोगे उतना तक ही चलेगा। आप 50 करोगे तो 50 तक चलेगा, 90 करोगे तो 90 तक चलेगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आप समझ रहे हो दोनों का लिंक? Yes, ये यहाँ यूजर ने 50 डाला है तो ये 50 तक चलेगा, ये 40 है तो ये 40 तक चलेगा, राइट? यस, नो? Yes, sir. Yes, तो sir. ये अच्छा है कि आपको फिक्स करना है कि 100 तक ही चलाना है। ऐसा नहीं चाहिए ना अपने को, तो क्योंकि यूजर 100 बोलेगा तो 100 तक भी चलेगा। नाउ आई एम आस्किंग द यूजर एंटर नंबर। आप एक एक नंबर एंटर करते रहो। एंटर नंबर %d, i+1. It will say enter number 1, 2, 3. It doesn't mean that you'll be entering 1, 2, 3. It means you enter your first number. It can be any number. Enter second number, enter third number. And then I'm reading those numbers. Scanf %d ampersand a of I. I'm storing those numbers in the array. और फिर से वही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि फिर से आपको सम कर लेना है। सम इज इक्वल टू सम प्लस ai। मैंने सबको स्टोर कर लिया। एंड देन आई फाउंड आउट द एवरेज। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय n। आई गॉट द एवरेज। नाउ आई विल हैव टू चेक। मेरे पास 100 बच्चों के मार्क्स हैं और मुझे ये चेक करना है कि वो कितने बच्चे एवरेज से नीचे हैं और कितने ऊपर हैं। तो मुझे फिर किसकी जरूरत पड़ेगी? लूप की जरूरत पड़ेगी, राइट? यस, नो? स्टूडेंट्स, yes, what do I require? Loop, right? मुझे हर एक स्टूडेंट्स yes, का मार्क्स जाके चेक करना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा कि उसका मार्क्स एवरेज से नीचे है कि ऊपर है। सो आई एम स्टार्टिंग फॉर i0, i is less than n, i++। आई एम चेकिंग इफ, देखो आ गया कंट्रोल। फॉर के अंदर कंट्रोल है, फॉर के अंदर कंट्रोल है। इफ ai, पहला बच्चे का मार्क्स इज ग्रेटर देन एवरेज मार्क्स, मतलब एवरेज है 67 और बच्चे का मार्क्स है 68, तो हम उसको बोलेंगे सर यू आर अबव एवरेज, राइट? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? Yes. Yes, sir. तो yes, sir. यहाँ पे ये इफ में दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो उसका मार्क्स मोर देन एवरेज होगा या तो फिर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा? Below Student. Below average. average. Below हाँ average. हाँ, अगर वो अबव एवरेज नहीं है तो फिर चेक करने का जरूरत ही नहीं है। आई विल से बिलो एवरेज प्लस प्लस। इज Below दैट average क्लियर? is automatic.
वो तो देखो एक ही चीज ट्रू होगा, या ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। अगर ग्रेटर नहीं है तो फिर क्या है, चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं, राइट? नहीं सर। नहीं। तो ये प्रोग्राम देखो कितने बच्चों के मार्क्स चेक करेगा, n बच्चों का मार्क्स चेक करेगा। पहले A0 इज ग्रेटर देन एवरेज है तो A प्लस प्लस, A प्लस प्लस, नहीं है तो सेकंड नंबर A1 इज ग्रेटर देन एवरेज, A2 इज ग्रेटर देन एवरेज, A3 इज ग्रेटर देन एवरेज। जितने भी होंगे उसका ये बिलो एवरेज अबव एवरेज कर देगा, राइट? एंड एट द एंड आई जस्ट हैव टू सर्व, मेरा फूड रेडी हो गया, मैंने सब कुछ पका दिया है। आप इसको मुझे थाली में अच्छे से रखना है। क्या क्या बनाया है आपने? सर मैंने 3 चीज बनाई थी आज। क्या बनाई थी? राइस, चपाती, वेजिटेबल। इधर किधर राइस है सर? अरे आई मीन टू से आई हैव फाउंड आउट एवरेज, तो उसको डिस्प्ले करो आप। एवरेज %f /n कर दिया मैंने। और क्या पकाया था आपने आज? सर above average, so I will display that also. Above average is equal to %f comma AA। और कुछ बनाया था आज? यस सर। व्हाट? बिलो एवरेज, राइट? Right. ये Yes, sir. इतने आज Yes. में आज का लंच में हमने तीन ही आइटम बनाए हैं, राइट? बिलो एवरेज और गेट CH और क्लोज दिस। ये क्या हो गया? प्रोग्राम किधर गया बाबा? इधर ही है। हाँ। देख लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर से चेक कर लो। पूरा प्रोग्राम मैंने आपको साथ में दिखाया है। इफ देयर इज एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डिफिकल्टी प्लीज आस्क मी। सर ये नहीं समझा मुझे, यू आस्क, आई विल एक्सप्लेन। स्टूडेंट्स, हेलो, Yes. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। Yes, sir. एनीवन हैविंग एनी डाउट्स इन दिस? किसी को भी प्रॉब्लम है कुछ? डोंट वरी, आई विल ऑल्सो राइट इन द CMAME. It's not that I'm writing with my pen. I will write directly in the C programming as well, and you will see the output as well, right? Yes, sir. Yes. I hope we are clear with this. Shall I go ahead? सर बोलो। Yes, sir. बोलो बेटा। Where सर is our? वो फॉर लूप सर आपने 2 बार लिखे, ऐसा क्यों सर? हाँ बताओ ना। जो पहले ऑरेंज आप, में लिखा है। हाँ देखो, पहला फॉर लूप में आप यहाँ पे नंबर रीड कर रहे थे। यहाँ पे क्या क्या हुआ है? नंबर रीड हुए और सम हो गए हैं, राइट? इतना काम हुआ है और लूप खत्म हो गया, राइट? यस लूप सर। आपने यहाँ पे क्यों खत्म कर दिया आपने? क्योंकि आपको एवरेज निकालना है, उसके पहले मुझे उतने सारे नंबर को ऐड करना है, बाद में मैं एवरेज निकाल सकता हूँ, राइट? सुना मेरी यस बात? सर। कि भाई मुझे एवरेज निकालना है तो आपको एक लूप चलाना पड़ेगा। पहले जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको ऐड करके एवरेज निकाल लो, बाद में फिर से हम दूसरा चलाएंगे, ये वाला। अभी दूसरा लूप क्यों चलाया भैया आपने? क्योंकि अब आई एम रेडी विद दिस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका रेडी हो गया, ये वाला पार्ट। ये क्या है सर? एवरेज, राइट? एवरेज। अब एवरेज रेडी हो गया तो अब आपको चेक करना है कि कितने बच्चे ये एवरेज से ऊपर हैं और कितने बच्चे एवरेज से नीचे, राइट? यस सर। जैसे बोर्ड, जैसे तुम बच्चे हो, तुम सब लोग 100 बच्चे हैं और मैंने अभी क्लास का एक एवरेज निकाल लिया, एवरेज इज 72। तो अब मैं सब बच्चों से पूछ रहा हूँ, चलो टेल मी योर मार्क्स, टेल मी योर परसेंटेज। सो आई एम जस्ट 100 बच्चों से पूछता चला जाऊंगा यहाँ पे, और मैं चेक कर रहा हूँ कि हाउ मेनी आर अबव 72 एंड हाउ मेनी आर बिलो 72। बट हाउ यू केम टू नो अबाउट 72? पहले मैंने सबके परसेंटेज पूछे और ऐड करके एवरेज निकाला, देन आई केम टू नो 72, राइट? यस, नो स्टूडेंट्स? यस सर। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? पहले क्या किया गया? पहले सबके एक एरे है, 100 बच्चों का एरे है। वहां पे किसी ने 82 बोला है, किसी ने 62 बोला है, 61 बोला है, 91 बोला है, 85 बोला है, ऐसा डॉट 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 100 बच्चों का मार्क्स है।
आपने क्या किया, सबसे पहले सबको एक फॉर लूप लेके ऐड किया, डिवाइड किया, और आपको एक एवरेज आ गया 72, राइट? यस और नो? यस सर। आप क्या कर रहे हो, आप ये फिर से एक एक को चेक कर रहे हो, इससे ऊपर कौन है नीचे कौन है, राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। इसके लिए हमें इसलिए डबल फॉर लूप की जरूरत पड़ सकती। आई कैन नॉट फाइंड सर आउट, तो कैन पहला वी फाइंड आउट अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज इन द सेम, एक ही फॉर लूप में हो सकता है क्या? एक ही फॉर लूप के नो अंदर हो सर, वो जाएगा? दो फॉर लूप लगेगा। हाँ, अभी समझ में, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर मतलब हम जब ऐड कर रहे थे वो टाइम में एवरेज तो नहीं निकाल सकते ना, एवरेज कब निकलेगा, जब सब ऐड हो जाएगा, राइट? यस। और फिर जब एवरेज निकल जाएगा तो फिर अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या था? एवरेज, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। तो उसके लिए मुझे फिर से दोबारा फॉर लूप चलाना पड़ेगा, राइट? यस यस। क्योंकि कितने स्टूडेंट्स के परसेंटेज मुझे चेक करने हैं, जो भी मेरा एन होगा, राइट? तो दोबारा फॉर लूप चाहिए कि यस नहीं चाहिए, आप बोलो पहले। चाहिए सर। चाहिए, राइट? यस, नो? यस सर। यस। यस सर। अभी अभी आंसर आया कि नहीं आया, समझा नहीं समझा? समझा सर। चलो, समझ गया है तो चलो, आई विल गो अहेड नेक्स्ट वन, और आज का लास्ट एंड फाइनल प्रोग्राम करूंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल भी है अपना। यू हैव एनी लेक्चर आफ्टर दिस स्टूडेंट्स? Yes, sir. Web programming. WP. Yes, sir, WP. ओ, सरोजिनी मैडम है, 1240. सरोजिनी मैडम है ना? Yes. यस। आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा कि हाउ टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू बाइनरी, राइट? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा Yes, है? sir. Yes, sir. Yes. पढ़ा है, और हम पढ़ा लोग है. फर्स्ट डे जब मिले थे तब हम लोग ने भी फिंगर देख के काम किया था, राइट? Yes, sir. किया Yes, था? sir. हाँ. तो चलो अगर मैं एक नंबर ऐसे ही ले लेता हूँ, मे बी 53 ले लिया है, तो 53 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या कर रहे हो आप, बोलो स्टूडेंट्स? डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, रिमाइंडर 1 निकला तो वो 1 लिखेंगे साइड में। आप देखो स्क्रीन में सब बराबर हो रहा है क्या? Yes, sir. आप मुझे बताना, कुछ रॉन्ग रहेगा तो प्लीज टेल मी, राइट? और ये नंबर्स को हम लिखेंगे ऐसा, राइट? Yes, sir. Yes. और ये इसका हो गया बाइनरी। अब चेक करना है कि ये इसका बाइनरी है कि नहीं है, तो ये मेरा 1 प्लेस है, ये मेरा 2 प्लेस है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 32 है। चेक करो ये 53 है क्या? दैट मीन्स आई एम हैविंग 32, Yes, sir. 53 है. 16 प्लस 4 प्लस 1, 53 है ये? Yes, sir. हाँ, यस, हाँ बिकॉज ये सर, 53 है. 53 है, वेरी गुड, ये 53 है। अब सर आपने ये क्यों कराया मुझे? ये इसके लिए कराया कि एक बार रिवीजन लो, और आप यूजर से नंबर लेके आप उसको कन्वर्ट करके दो प्रोग्राम में। आप क्या कर रहे हो, तो मतलब बार बार मुझे कैलकुलेशन नहीं करना पड़े कि टेक अ नंबर डिवाइड बाय 2 रिमाइंडर ऐसा। तो सर इसमें फिर मुझे ये तो कुछ समझा नहीं सर, ये पेन पेपर में तो करना बहुत आसान है, अब तो फिर से टेंशन दे रहे हो, प्रोग्राम कैसे करेंगे सर इसका? सर आप तो बहुत ही टेंशन देते रहते हो, राइट अजिल? हाँ सर। टेंशन हो रहा है? हाँ, नहीं ना, बोलना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, एनर्जी रहना चाहिए मिस्टर अजिल वॉइस में। सर आपको तो टेंशन किस बात का है, हो जाएगा सब, नहीं आएगा तो हम लोग और 2 बार पूछेंगे, राइट? हाँ सर। यस। अब ये मैंने बताने के बाद में स्टूडेंट्स, अब हम कर क्या रहे हैं इसमें, हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा इसमें, ये प्रोग्राम पूरा करने के लिए, व्हाट ऑल थिंग्स वी रिक्वायर, राइट? हमें फॉर लूप चाहिए कि वाइल लूप चाहिए, देखते हैं कौन आंसर करेगा इसमें। आप क्या कर रहे थे इसमें पता है, एक नंबर मिलता है आपको, कोई भी नंबर, उसको डिवाइड करते रहते हैं। कब तक डिवाइड करते हो? जब तक डिनोमिनेटर 1 नहीं आ जाता। जब तक डिविजिबल होगा वो. जब तक 1 या 0, 0 भी तो हो सकता है ना? यस सर। यस सर, जब तक वो डिविजिबल होगा तब तक करना होगा. हाँ, तो मतलब ये फॉर जाएगा कि वाइल में चलेगा? वाइल में सर।
वाइल में, क्योंकि While मुझे यहाँ तो 2 डिजिट है, हो सकता है कोई मुझे सब 4 डिजिट दे दे, 5 डिजिट दे दे, तो कितना देर चलेगा वो, राइट? वाइल बहुत बड़ा हुआ। हाँ, वो डिपेंड्स, आई डोंट नो कि यूजर कितना डिजिट नंबर एंटर कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो हमें वाइल करना है। पहली बात तो वाइल समझ में आ गया। दूसरी बात, मुझे दूसरा जरूरत है कि ये जो नंबर है कौन से, ये जो रिमाइंडर आप लिए हो, ये वाले, ये राइट, इसके ऊपर ध्यान दो। ये रिमाइंडर को मुझे सबको स्टोर करना है। क्यों स्टोर करना है? क्योंकि बाद में सर आप बोल रहे हो ना, ये प्रिंट भी करना है, ये वाला, राइट स्टूडेंट्स? हेलो, यस सर। Yes, sir. मतलब ये जितने रिमाइंडर आएंगे 101010 सबको मुझे स्टोर करना है। कितने रिमाइंडर आएंगे? जब तक वो उसको डिवाइड करते जाएगा उतना आएगा। तो मतलब क्या वेरिएबल यूज करूं कि एरे यूज करूं? किसकी जरूरत पड़ेगी मुझे? अरे एरे Array. कर। अरे तो पहला रिमाइंडर कौन आया था? पहला आया था ये वाला 1, राइट? इज दैट क्लियर? यस। वो कहां पे लिखा है? वो इधर लिखा है, क्योंकि आपने लिखा कैसे, इसको उल्टा लिखा है, राइट? 110 आपने कैसा लिखा है, राइट ना? तो लास्ट रिमाइंडर Yes, कहाँ sir. लिखा? लास्ट रिमाइंडर इधर है, ये आपका आपने कैसे लिखा? 110, ये देखो, ये 0 है इधर, फिर ये 1 है, फिर ये 0 है, फिर ये 1, फिर ये 1, राइट? ऐसे लिखा है ना आपने? यस सर। यस। Yes. तो मतलब जो भी A0 में कौन आएगा, इसमें A0 में कौन है आपके हिसाब से? A0 में सर 1 है। A1 में कौन है? 1 A1 में कौन है? 0। 0 A2 में कौन? A2 में कौन है? 1। A3 में 1 कौन है? A3 में कौन है? 1, राइट? 0। राइट ना स्टूडेंट्स? तो आपको प्रिंट कैसे करना है ये एरे? जब जब सब लोग स्टोर रहेंगे तो आपको एरे उल्टा प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो Reverse. लास्ट रिमाइंडर है वो तुम्हारा कहाँ पे है, राइट? गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? एरे कैसे प्रिंट करना है यस सर। आपको? रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। कैसे करना है? रिवर्स ऑर्डर में। क्यों Reverse रिवर्स order. ऑर्डर में? फर्स्ट रिमाइंडर हैव टू प्रिंट लास्ट एंड द लास्ट रिमाइंडर हैव टू प्रिंट फर्स्ट, राइट? यस नो? Yes, sir. यस सर। तो आप पहले प्रोग्राम को पूरा समझ, 8301। हाँ पहले पूरा प्रोग्राम को समझ लो कि इसमें हो क्या क्या रहा है। पहला, एक वाइल लूप जरूरत पड़ेगा, एक नंबर चाहिए, एक एरे चाहिए। एरे क्यों चाहिए सर? ये जितने 10 आएंगे सबको पकड़ के उसके अंदर डाल देंगे हम लोग, राइट? जितने भी 10 आएंगे, क्योंकि वही आंसर है, तो इनको सबको कहाँ बिठाना है? सबको एरे के अंदर बिठाएंगे, राइट? यस नो स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, और sir. क्या कर रहे हो आप? नंबर को 2 से डिवाइड करोगे। चलो अब हम प्रोग्राम लिखते हैं, देखते हैं हमारे बच्चे समझेंगे कि नहीं। चलो, क्वेश्चन क्या है हमारा? राइट अ प्रोग्राम, WAP, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम है। तो सबसे पहला लाइन हमारे बच्चों को बहुत जल्दी समझता है, इज दिस, देन आई एम आस्किंग द यूजर, भाई एक नंबर बता दो। एक नंबर आ गया मेरे पास, फिर उसका हम रिमाइंडर निकालेंगे। अच्छी बात है। और मुझे एक एरे बनाना है। क्या एरे का साइज होगा? मैंने 16 रखा है। मैं 16 क्यों रखा हूं मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। मैक्सिमम 16 का साइज रखा है। शायद कोई बच्चे को क्लिक हुआ होगा, किसी को नहीं हुआ होगा, आई डू नॉट नो स्टूडेंट्स। और एक आई का जरूरत है। आई इज 0 राइट नाउ। सर आई क्यों रखा है? वो भी अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा आई क्यों है करके। A16 क्यों रखा है सर आपने? अगर आपको पता होगा कि इंटीजर का 4 प्रॉपर्टी बिट। क्या, 2 बाइट्स। इंटीजर का साइज कितना होता है? 2 बार। 2 bytes. मतलब Right, sir. आप बड़ा से बड़ा कितना नंबर एंटर कर सकते हो? 32767, राइट? Yes, sir. Yes, sir. इससे बड़ा तो नहीं एंटर कर पाओगे ना, राइट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इससे बड़ा एंटर करोगे तो आपको लॉन्ग इंटीजर में जाना पड़ेगा। Hmm. और ये Yes. 2 बाइट्स में बिट्स कितने होते हैं? बिट्स 16 होंगे।
Yes, sir. Yes. मतलब कितने रिमाइंडर आ सकते हैं 1 0 करके? 16 रिमाइंडर आ सकते हैं, राइट? Yes, sir. इससे ज्यादा आएंगे? नहीं सो इतनी आएगी. इतने ही आएंगे. यस, इसके लिए मैंने 16 फिक्स कर दिया. मैंने वो भी बता दिया कि मेरा एरे का साइज 16 क्यों है. हाँ, अब सबसे पहले मैं यूजर को बोल रहा हूँ, क्लियर स्क्रीन कर दिया मैंने, और मैंने यूजर को बोला चल भाई नंबर दे दे. एंटर एन इंटीजर. मिल गया मुझे नंबर. अब मैं रीड कर लिया नंबर. नंबर मिल गया भाई. अब ये बेचारे नंबर को हमें, इससे मुझे क्या निकालना है प्रोसेस में, इससे मुझे प्रोसेस करना है. इंडस्ट्री कैसे वीट लेके आपको आटा बना के देते हैं, ग्रेन लेके पल्सेस बनाते हैं, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना है. नंबर लेने के बाद में इसमें से आप कुछ करो तो इसके 1010 निकले. क्या करेंगे हम नंबर लेने के बाद? यहां ब्रेन होना चाहिए. जैसे कैसे एक इंजीनियर अपना गारमेंट्स का ऑटोमेटेड प्लांट डालता है, रोबोटिक्स का सिस्टम करते हैं, तो वो क्या है, ब्रेन आता है. तो वो ये भी एक छोटा ब्रेन है स्टूडेंट्स. ये नंबर मिला है, इसमें से 1010 कैसे निकालूं मैं, राइट स्टूडेंट्स? बहुत सारे रेसिपीज मिल के नया प्रोडक्ट बना देते हैं. तो वैसे ही हमें नंबर मिला है, तो इसमें से मुझे 1010 बनाना है. कैसे बनाऊं मैं? क्या करना पड़ेगा? नंबर मैंने आपको दे दिया, अब आप क्या करोगे? क्या कर रहे थे हम यहाँ पे, जरा देखो यहाँ पे क्या हो रहा था. Divide क्या by 2. डिवाइड बाई 2. इतना देर से क्यों सोच रहे थे? कब तक डिवाइड बाई 2 करोगे? जब तक वो नंबर डिविजिबल होगा. तो जब तक नंबर डिविजिबल होगा मतलब कब तक उसको बेचारे को मारोगे, पीटोगे? छोटा होता जाएगा, हर बार छोटा होता जाएगा, राइट? यस सर. तो कितना छोटा हो जाएगा तो चुपचाप बैठ जाओगे? जब वो किल हो जाएगा, डेड हो जाएगा, 1. जीरो हो जाए, यस सर. जब तक Zero. वो- जीरो हो जाएगा तो बस मत मारना उसको, फिर Zero. छोड़, बस, राइट ना? तो Yes, sir. मारने से पहले उसको चेक कर लेते हैं कि अभी लिविंग है कि नॉन लिविंग है, एक्टिव है कि इनएक्टिव है. जीरो का मान लो किसी, हो सकता है किसी ने जीरो एंटर कर दिया, तो क्या उसको आप मारना चालू करोगे? नहीं ना. मारना मतलब क्या? डिवाइड करना. तो स्टूडेंट्स मैं सबसे हाँ. पहले मैं वाइल लूप ले लिया, और मैं वाइल लूप में चेक कर रहा हूं कि इफ द नंबर गिवन नंबर इज नॉट जीरो, तो ही ये करना है. जीरो है तो फिर कुछ नहीं करना है, राइट स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले अगर मान लो आपका नंबर 25 था, तो आपको क्या निकालना है? इसका रिमाइंडर निकालना है. रिमाइंडर कौन देता है? परसेंट देता है. याद है कुछ की भूल गया? परसेंट 2 करेंगे तो 1 आएगा, राइट? Yes, sir. और 25 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा. याद है कि भूल गया सब? परसेंट क्या देता है? रिमाइंडर. और ये डिवीजन क्या देता है? कोशेंट. याद है कि भूल गया है भाई तुम लोग को? हेलो, याद है. सब बच्चों को याद है कि परसेंट मींस Sir, इफ यू वांटेड. internet is not working, sir. I'll join later, sir. क्या हुआ बेटा? सर मेरा नेट नहीं चल रहा, मैं बाद में ज्वाइन करता हूँ सर, थोड़ी देर बाद. दैट इज योर लुकआउट. ठीक है बेटा. सो व्हाट परसेंट गिव्स बेटा? परसेंट, हेलो, Remainder. Remainder. and that this division sign Remainder. give, and this division sign give the Quotient. quotient. इतना याद रहेगा, राइट? तो आफ्टर गेटिंग द नंबर, लुक एट दिस फर्स्ट लाइन. मैंने 25% 2 किया, मतलब मुझे क्या मिला? 1 मिल गया कि नहीं मिला? हाँ या ना? मिला. आर में Yes, sir. 1 आया. अब ये 1 को मैं एक एरे में जाके बोलता हूं तुम इधर बैठो चुपचाप, कहीं जाना नहीं, मैं फिर से आऊंगा तुमको मिलने. तो आई मैंने वहां 0 रखा था, याद होगा? ये देखो, यस, आई 0. ये A0 में कौन आ गया? A0 में कौन आया? 1. चलो आप यही नंबर रखो, 25 एग्जाम्पल के लिए रखो. तो A0 में कौन आया? देखो मैंने डिवाइड कर रहा 1. हूँ. हाँ, यहाँ पे 12 लिखा या 1 लिखा. 1. A0 में अब क्या करना है? अब n इज इक्वल टू n/2 कर दिया. अब n कितना हो गया?
n कितना हुआ स्टूडेंट्स? 12. 12 हुआ। 12. 12 हुआ, ये देखो 12 हो गया यहाँ पे। अब 12 और फिर मैं i प्लस प्लस कर दिया जरा। i प्लस प्लस मतलब i 0 था, अब i कितना हो गया? 1। i 1 होगा कि नहीं होगा? यस नो? Yes, Yes, sir. sir. नंबर कितना हुआ है? 12। नंबर कितना हुआ? 12, राइट? यहाँ पे नंबर कितना हो गया? 12, राइट? Yes. जल्दी Yes, से sir. बोलो। इस 12 इज 0? इस 12 इज 0? No, sir. नो। No. देन व्हाट इज 12% 2? 0. 0. 0. 12, 0. 12% 2 is 0. Where that 0 will be stored? वो 0 कहाँ स्टोर होगा? देखो पहला ये A1 है, A0 है, ये A1 है। A1 में अब कौन आएगा? 0 आ जाएगा, राइट? Yes. अब नंबर ये तो कितना था? A3 में से अभी 12/2 कितना होगा? 6. 6 होगा। 12/2 6 हुआ। और i कितना हो गया? i कितना हुआ? 3. i 6. 2 हुआ। i हाँ, 2 2 हुआ। 2. i 2 हुआ और n है 6। Is 6 is 0? No. No. 6 is not 0. 6% 2? 0. 0. 6% 0. Where this 0 will be stored? A2. At A2. 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 Now what is your number? What is your number? 6. 6/2. 3. 3. 3. What will be your i? 3. I will 3. also be 3. 3. I is 3. I is 3. N is 3. Is 3 is 0? No. Is 3 is No. 0? No. What is No. 3%? What is 3% 2? 1. 1. 3% 2. Where this 1 will be stored? A3. 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 Very good. A3. Now 3/2. What is 3/2? 1. 1. 1. 3/2 is 1. And what is your i? 4. 4. 4. I is 4. Is 1 is 0? No. 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 No, 1 is not 0. What is 1% 2? 1. 1% 2 is 1. Where that 1 will be stored? I5. A4. A4. Sorry. A4. Yes, sir. A4. A4. And then what is 1/2? What is 1/2? 0.5 integer part 0, right? Quotient is what? 0, right? Yes. Yes. And then what is your i? What is your i? A5. 5. 5. I will become 5. What is your n? N has become 0. I has become 5. So is your n is 0? Yes. Yeah. Yes. So अभी अब कुछ होगा? Yes. No. No, कुछ नहीं होगा, राइट? चलो अब हम प्रोग्राम में आ रहे हैं थोड़ी देर में। पहले यहाँ पे इसका पूरा ऑपरेशन देखो। आपको एक नंबर मिलेगा, नंबर पूरा लिख लो पहले। यहाँ पे एक नंबर मिला, यहाँ पे r इज इक्वल टू नंबर %2 किया हमने, राइट? यहाँ पे हमने ai इज इक्वल टू r किया, n इज इक्वल टू n/2 किया, और मे बी i आपको चाहिए तो आप रखो। तो हमारा i ये अभी हमारा इतना तो हमारे बच्चे समझ जाएंगे। नंबर इज 25। यहाँ पे 25% 2 करेंगे तो 1 आएगा। A0 तुम्हारा 1 होगा, ये हो जाएगा 12, ये रहेगा 12। 12% 2 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, और ये A1 में स्टोर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ये रहेगा 6% 2 करेंगे तो ये रहेगा 0, और ये भी हम एरे में स्टोर कर देंगे, ये 3 हो जाएगा। ये 3 रहेगा, 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। इसको 1 यहाँ स्टार करेंगे, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये रिमाइंडर में आएगा, ये यहाँ स्टोर हो जाएगा, और ये 0 हो गया। आप समझे क्या हुआ स्टूडेंट्स?
Yes, sir. Yes, sir. अब क्या हुआ, ये इसको मुझे कैसे प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करना है, Reverse. राइट, Reverse. रिवर्स प्रिंट करना है. देन व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट द आंसर. इज दैट क्लियर? Yes. ये जो मैंने दिखाया है वही प्रोग्राम में लिखा है. वट एवर यू हैव सीन जस्ट नाउ, द सेम थिंग रिटन इन द प्रोग्राम, नथिंग एल्स. जो आप डर गए थे, जो आपको कविता मैम ने सिखाया कि नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम बोल सकते हैं आप नंबर को हम प्रोग्राम में भी कन्वर्ट कर देंगे सर. वी कैन राइट ऑन द प्रोग्राम एंड वी हैव रिटन अ प्रोग्राम हियर. So initially I took the number 25, 25 was not 0, I got the remainder as 1, we stored in A0, then I reduced the number to 12, then I became 1. 12 was not 0, remainder was 0, then it got stored in A1, number became 6, I became 2, again 6 was not 0, remainder became 0, right? And that got stored in A2, number became 3 and so on, right? ऐसा हो रहा है कि नहीं बार बार लूप में? बोलो. Yes, sir. स्टूडेंट, आप लूप से बाहर आए थे तो आई का वैल्यू कितना था, किसी को याद है? When you came out of the loop, what was the value of I? Who will tell you how many remainders you 5. have got? Yes, किसको पता चला कि आपको आपने 5 रिमाइंडर निकाले हैं? आई को पता है, राइट? Yes. यस सर. और वो पांचों रिमाइंडर कहाँ पे हैं ये पता है आपको? अगर 5 रिमाइंडर हैं और एरे में हैं तो कहाँ पे स्टोर होंगे? वो 0 to 4 में. कहाँ पे स्टोर होंगे? कहाँ पे स्टोर होंगे? 0 to 4. तो पहले आपको क्या प्रिंट करना रहेगा? A4 प्रिंट करना रहेगा कि A0? A4. A4, यस. A4. तो अब यहाँ पे वी कैन हैव फॉर लूप कि अब हमको पता है प्रिंट कितने करने हैं, राइट? यस और नो स्टूडेंट्स? हेलो. Yes, sir. तो देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आई का वैल्यू अभी 5 है. 5 रिमाइंडर आए हुए हैं, बट माई लास्ट रिमाइंडर इज नॉट एट A5, इट इज एट A4. सो व्हाट आई एम डूइंग, माइनस माइनस आई. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस माइनस आई? जो भी है पहले उसको एक कम करो. कितना हो जाएगा ये? 4, राइट? कितना हो जाएगा? Yes. और फिर बोलेंगे कब तक माइनस माइनस करना है? जब तक हम 0 तक ना पहुंचे, क्योंकि मुझे 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 तक आना है. तो मैंने क्या किया, माइनस माइनस आई, वट एवर इज द रिमाइंडर, नंबर subtracted by 1. Why? Because I have to print that value first. So I'm printing here printf. Just look at this, printf %d a of I. तो देखो ये क्या करेगा, पहले I कितना था यहाँ पे 5, और वो 5 क्या हो गया, 4 हो गया यहाँ पे, राइट? माइनस माइनस करने के बाद में होगा कि नहीं होगा? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Is 4 is greater or is equal to 0? Is 4 is greater or is equal to 0? Yes, sir. Yes sir. Yes, 4 sir. is. So then it says print A4. तो कौन पहला प्रिंट हुआ? ये वाला 1 प्रिंट हो गया. हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला 1, A4 वाला. Yes, yes, sir. उसके बाद में I अभी कितना था? 4 था. Now I will become what? 3. 3. Is 3 is greater or is equal to 0? Yes. Yes. Then it says print ये वाला 3 प्रिंट करो. तो ये 1 एक और प्रिंट हो गया. Now what will be your I after 3? 2. 2. Is 2 is greater or is equal to 0? Yes. Yes. It says print A2, मतलब अब ये वाला नंबर प्रिंट हो जाएगा 0. After printing 2, what will happen? A1. I will be 1. Is 1 is greater or is equal to 0? Yes. So then it says print this value. So I got this printed. After printing that A1, I1, what is the next value of I? 0. 0. Is 0 is greater or is equal to 0? Yes. 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 So it says print A0 value, मतलब ये वाला. After this I will be what? -1. -1. Is -1 is greater or is equal to 0? No. No. Then please stop here. Please stop here. Look at this. We got the answer. ये मेरा प्रिंट हो गया. हुआ कि नहीं हुआ? Yes. Yes, sir. तो सर आपको देखो यहाँ पे मैंने फॉर लूप से क्यों प्रिंट किया है? बाकी नॉर्मल प्रिंट एफ हमारे सिंगल प्रिंट में आते थे. फॉर लूप बिकॉज यू नीड टू प्रिंट सो मेनी रिमाइंडर्स व्हिच यू हैव स्टोर्ड, राइट? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स?
हेलो। Yes, sir. तो ये तुम्हारा sir. पूरा ये तुम्हारा पूरा प्रोग्राम है। अगर आपको माइंड में आ रहा है तो अब मैं ये लिखता हूँ अभी, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। हेलो सर। बोलिए सर। सर माइनस माइनस आई की जगह पे आई इक्वल टू आई माइनस 1 लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। यस, आप पहले जब स्टार्ट करोगे यहाँ पे तो यू शुड राइट आई इज इक्वल टू आई माइनस 1। जो भी आई है, मान लो 10 रिमाइंडर आया है तो 9 से आपको स्टार्ट करना है, राइट? गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज मेरे हाँ, सो यू कैन राइट आई माइनस माइनस आई और आई इज इक्वल टू आई माइनस 1, एनीथिंग कैन बी रिटन, but you have to reduce the I value by 1 first of all before you start printing. Is that clear? Why we are reducing? Because I know the last value is not at A5, it is at A4. Last value is not at A10, it is at A9, right? Student, Yes, sir. अब इसमें किसी को डाउट है कुछ? while loop में कुछ नहीं समझा है? और कैसे समझाएंगे तुमको, बोलो अभी। while loop समझ रहा है, पूरे प्रोग्राम का मैंने डिसेक्शन करके रखा है, टुकड़ा टुकड़ा, ईच एंड एवरीथिंग आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कैसे हो रहा है करके। इट इज नॉट जस्ट आई रोट द प्रोग्राम एंड यू अंडरस्टैंड। सर वो बोलो। फॉर लूप में माइनस माइनस आई वो जरा बता सकते हो क्या? फर्स्ट वाला कौन बता सकता है वो, मुझे बताओ। कोई क्लास में है बच्चा जो समझ गया और बता सकते हैं? हाँ स्टूडेंट। अच्छा, Not, sir. मुझे व्हाट्स इज आस्किंग सर, ये मुझे बार बार बताओ आप, ये वाला माइनस माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स? सर वो रिवर्स प्रिंट करने के लिए आपने लिखा है ना? नहीं, रिवर्स प्रिंट करना है, लेकिन आपने माइनस माइनस क्यों लिखा है आपने, ऐसा पूछ रही हो? बोलो। एरे ए 0 से स्टार्ट होता है तो इसके स्टोर करते करते एक नंबर कम स्टोर होता है। देखो आपके जो रिमाइंडर क्या थे, आप बताओ पहले, आपके रिमाइंडर क्या क्या थे? A0, A1, A2, A3, A4। आपने यहाँ पे क्या स्टोर करके रखा है? A1, A2, A3, A4 आपने स्टोर किया है 1 0 0 1 1। कितने रिमाइंडर हैं ये? कितने हैं 5. स्टूडेंट? 5। I. तो आई ए लूप से बाहर कब आए होगे? जब आई का वैल्यू 5 रहा होगा, राइट? राइट ना स्टूडेंट्स? Yes, sir. हाँ, तो आप Yes, sir. अब मेरा लास्ट रिमाइंडर मैंने कहाँ पे स्टोर किया है? A5 में है कि A4 में है? A4. आप तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? तो मैं बोल रहा हूँ फॉर जो भी आई है पहले उसको एक माइनस करो, राइट? तो आई 5 था तो आई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों 4 हो जाएगा? क्योंकि आपको ये वाला प्रिंट करना है पहले, राइट? Yes. यही करना है ना। फिर कब तक आप माइनस माइनस करोगे? जब तक आप यहाँ नहीं आ जाओगे, जीरो के पास नहीं आ जाओगे, रिवर्स में, ऐसा, राइट? यस नो? और हर एक स्टेप Yes, में sir. माइनस माइनस करते, पहले ये प्रिंट करो 1, फिर ये प्रिंट करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ऐसा। तो आप प्रिंट करना चालू करो, प्रिंट एफ %d a ऑफ i। तो ये किसको प्रिंट करेगा पहले? अभी देखो आई 4 हुआ माइनस माइनस करने से, तो पहले A4 को प्रिंट करेगा, मतलब 1 किया। फिर आई यहाँ से 3 हो जाएगा, फिर A3 को प्रिंट करेगा, फिर 2 हो जाएगा तो A2 को प्रिंट करेगा, फिर 1 हो जाएगा तो A1 को प्रिंट करेगा, फिर 0 हो जाएगा तो ये प्रिंट करेगा, राइट स्टूडेंट? अभी भी डाउट है? Yes. नहीं No, सर, sir. थैंक बहुत कॉमन सेंस ले लो। अगर मैंने आपको 10 नंबर दिए और मैंने बोला कि चलो आप इनको रिवर्स में प्रिंट करो, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग। 10 नंबर मैंने आपको दिए और मैंने बोला रिवर्स प्रिंट करो बेटा, तो आपको पता होना चाहिए 10 नंबर तो दिए, लेकिन मेरा 10th नंबर है कहाँ, किसके पास है एरे में? स्टूडेंट्स, A9 के बाद. 9 के पास। A9. तो आप क्या करोगे? सबसे पहले माइनस करोगे कि नहीं करोगे, कि A10 से स्टार्ट करोगे? नहीं सर, माइनस है. Minus 5. क्योंकि A10 means which number? What in by A10? A10 means 11th number, right? Yes. Do you have 11th number? No.
No. Here A5 means which remainder? Fifth or sixth remainder? A5. Sixth. Sixth. Do you have Sixth. sixth? Do you have sixth remainder here? How many No. 1 zeros you have? How many 1 zeros you have? 5, right? Yes. So where is your fifth value? Is at fourth place? Yes, sir. Fifth value means it's sixth value, right? Sixth, fifth, मतलब A5 करेंगे तो मेरा कौन सा वैल्यू होता है? Sixth वैल्यू होता है, which is wrong, right? Yes, sir. Students, समझ रहा है ये चीज कि नहीं समझ रहा है? I hope you'll have noted down this, and it is also there in the recording. You can check it later also. That's not a problem. Now I will write the program for this. Shall I write the program for this? Yes, sir. Yes. So then you all can see the output. और अगर ये प्रोग्राम आपको समझ गया है तो इसके साथ में 2-3 प्रोग्राम फेस्टिवल आ रहे हैं तो फ्री में मिलेंगे. It means how to convert a number into octal, how to convert a number into what you can say the hexadecimal, वो भी हो जाएगा अगर ये समझ रहा है तो. ठीक है? So let me go back to the program then, students. I'm writing the program for you all. मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, sir. Yes. Just have a look. Void main integer, एक नंबर चाहिए आपको, नंबर ले लिया मैंने, एक आई चाहिए लूप चलाने के लिए, एक रिमाइंडर आएगा, और एक एरे मैंने 16 का रखा हुआ है, 16 का, और राइट, और आई मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से, नहीं तो गार्बेज ले लेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट. A0 में पहला रिमाइंडर जाएगा, इसलिए मैंने आई को 0 रखा है. अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स? यस और नो? आपको पता है वेरिएबल हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, राइट? हेलो. Yes, sir. So printf enter an integer. मुझे एक इंटीजर मिल गया है. After getting this integer, scanf %d, I got the number. After getting this number, I'll have to divide by 2. How long till this number becomes 0? So while, but when you will be dividing, if it is not 0, then only I'll divide. अगर already बेचारा कुछ बचा ही नहीं तो आप उसको क्या divide करेंगे? हाँ स्टूडेंट्स, बोले सर ये चॉकलेट चलो आधा आधा ले लेते हैं, लेकिन चॉकलेट है किधर? देयर इज नो चॉकलेट एग्जिस्ट, 0. So then what will you divide? So while number is not 0, if there is chocolate, then only you can divide among yourself. So while number is not 0, then I will try to find out the remainder, number %2, और वो रिमाइंडर को मैं एरे में छुपा के रखा हूं because I will be requiring later on for printing. And then again I'll reduce the number by 2, and then I'm just increasing my I. Why you are increasing I? What is this? What is this I? I is just to, because every time you have to change the position of your array. First number A0 में है तो second कहाँ होना चाहिए? A1 पे, third A2 में. That's the reason I'm increasing my I. अगर आपको और शॉर्टकट चाहिए तो I can have more shortcuts here, but वो थोड़ा देर के बाद बताऊंगा, otherwise you all get confused. So I'm closing this. Now I know how many times or how many remainders I have got. So I'm just doing minus minus. Some students, sir, can you write I is equal to I minus 1? Yes, I do write, or we can write I is equal to I minus 1. How long? Till come to 0 and then I minus minus. This can be done. And then I said printf %d comma a of I. तो आप देखो आपने रिवर्स एरे को प्रिंट कर दिया, और क्लोज दिस and get ch and close the program, and the program name is save as decimal to binary dot c, decimal to binary dot c. Look at this, the program is successful, there is no problem in this. I'm taking the number 10. What is the binary of 10? Anybody?
Students, you have the finger, tell me the answer. Hello? 1010. 1010. Are we getting 1010? Yes, sir. मतलब Yes, हमने sir. program- चलो. What is the binary of 9? 1001. 101? Check करो 1001. 1001. 1001. 1001. हो रहा है? आंसर आ Yes, रहा sir, है? correct. हाँ sir. Can we trust our program then? कि हमारा प्रोग्राम Yes, बराबर sir, है? we can. We can trust now, right? Now you trust, Yes. you check for the number which you have 25 की बात हुआ था, check whether you are getting your answer. आ रहा है? 16 plus 8 plus 1? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. हेलो कितना सर. अच्छा, हाँ बोलो ना सर. सर अगर डेसिमल में भी वैल्यू मतलब 25 पॉइंट समथिंग अगर ऐसा रहेगा तो उसका करने के लिए वहां पे like आ fraction. रहे हैं, पहले वहां पे आएंगे. हाँ मैं समझ गया. आई नो दैट आई एम गोइंग टू आस्क टेल यू दैट, डोंट वरी. पहले जब मम्मी किचन में लाएगी तो पहले चपाती या चाय बनाना सिखाती है बेटा, बराबर ना? यस सर. अभी तुम बोलोगे शाही पनीर बनाना सिखाओ तो मुसीबत हो जाएगा पहले ही दिन, राइट? क्यों बेटा? यस यस सर. तो आई एम कमिंग बैक टू दैट, डोंट वरी. पहले स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, बाद में नहीं तो प्रॉब्लम होएगा. तो we have learned how to convert a number into binary. We all of us have understood. I don't think there is any problem in this, right? Student, are you going to behat this program? Is there we need to behat this program? ऐसा कोई जरूरत है behat करने का? मतलब अगर ये मैंने प्रोग्राम बंद किया, प्रोग्राम बंद कर दिया, अब जरा मेमोरी से रिकलेक्ट करो क्या किया था सर ने. एक नंबर लेना चाहिए, रीड किया मैंने नंबर, एक वाइल लूप लगाया, रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को स्टोर किया, नंबर को और छोटा किया और एक काउंटर बढ़ाते जाएंगे बिकॉज एवरी टाइम आई नीड टू स्टोर द रिमाइंडर. आई को प्लस प्लस करते हैं हम लोग बस, और बाद में उसको रिवर्स प्रिंट कर देते हैं. और क्या था? कुछ तो नहीं था, राइट? अपने आप को जरा रिकलेक्ट करो क्या हुआ पूरा. स्टूडेंट, क्या हुआ था? समझ गया कि नहीं? हेलो? यस सर. यस सर. अब मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर आप बोलो तो एक दो लाइन इसमें कम कर देते हैं. तो मैंने यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट डाला है. पोस्ट मतलब पहले A0 विल बी रिमाइंडर एंड देन I विल बिकम 1. बाद में, पहले नहीं, बाद में. A0 विल बी 1 एंड देन I विल बी 1. सो नेक्स्ट रिमाइंडर जब आएगा तो वो A1 में जाएगा और A1 में जाने के बाद फिर से I पोस्ट इंक्रीमेंट. स्टूडेंट जरा देखो मैंने क्या कर दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो? नहीं सर, ये समझ नहीं आया. Yes, sir. देखो आपको एक चीज मैंने बताई थी, ये A0 हुआ, I 0, राइट? I was 0, A0 Yes, में sir. आया और आपने वो A1 को करने के लिए A1 में जब R ले आ रहे थे सेकेंड वाला रिमाइंडर, तो आप I का वैल्यू केवल चेंज किए थे, राइट? सो दैट A1 इज R. तो आप हम यहाँ पे क्या करते हैं? पोस्ट, यानी फर्स्ट I0, A0 इज रिमाइंडर. नेक्स्ट जब सेकेंड रिमाइंडर आएगा तब तक I का वैल्यू चेंज हो जाता है. हमने प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट किया था ना. पोस्ट में क्या होता है कि फर्स्ट असाइन एज इट इज. A0 में आप रिमाइंडर को स्टोर कर दो. I1 कब होगा? बाद में. I1 कब होगा? पहले की बाद में? बाद में. और जब 1 हो जाएगा तो सेकेंड रिमाइंडर आएगा तो वो 1 में स्टोर होगा और बाद में स्टोर होने के बाद में I विल बिकम 2, राइट? और शॉर्टकट करना है तो देखो प्रोग्राम को मैंने और छोटा कर दिया. पता नहीं कितने लोग समझेंगे. मैंने रिमाइंडर को भी हटा दिया. लो, तो अब स्टार्टिंग में क्या होगा? देखो इतना शॉर्टकट कर दिया. A0 में मेरा रिमाइंडर आएगा, पहला रिमाइंडर A0 में. I भी 1 हो गया है तो A1 में अब सेकेंड रिमाइंडर आएगा, A2 में थर्ड रिमाइंडर आएगा, राइट? स्टूडेंट हेलो? स्टूडेंट यस सर. आप जरा ये भी Yes. प्रोग्राम रन करके देखते हैं क्या हो रहा है जरा. 10 का बाइनरी था 1010. आर वी गेटिंग 1010? यस सर. अगर मैं Yes, इतना sir. लिखता, जो अभी मैं जितना लिखा हूं ये लिखता तो तुमको समझाने में तो मुझे बहुत टाइम जाता था.
सर लेकिन समझ रहे हैं ना अभी? हेलो सर ये आपने सिलेक्ट कैसे किया ये दो? क्या? ये जो अभी किया ना, ये एन ए और एन सिलेक्ट कैसे किया? ये पूरा कौन सा की यूज किया? करके डाउन एरो, शिफ्ट करके डाउन एरो, शिफ्ट करो डाउन एरो। ओके सर। एंड वो जो अगर मेरे को कोई ये बीच में टाइपिंग करने का है, अगर मैं ये सपोज करली ब्रैकेट भूल गई टाइप करना, देन ना मेरे को बीच में ऐसे टाइप करने नहीं होता है, पूरा ही डिलीट करना, सॉरी पूरा ही यहाँ डिलीट करना पड़ता है, देन जाके वो टाइप होता है। अब देखो ये मैं भूल गया, मान लो हमने कर्ली ब्रैकेट भूल गए, मैंने एंटर कर दिया, यहाँ पे जगह खाली कर ली और ये मैंने कर्ली ब्रैकेट कर दिया, राइट? और मैंने कुछ भूल गया, देखो जितना आप चाहिए स्पेस ले लो और टाइप करते रहो, तो आपका क्या होगा पता है? आपका इंसर्ट बटन ऑन होगा बेटा, इंसर्ट को बंद कर दो। ओके सर, ओके सर। वो ब्लिंक होते रहता होगा, ब्लिंक होते रहता होगा वहां पे, ब्लिंक। जैसे मैं भी इंसर्ट को ऑन करेंगे ना, जैसे अब मेरा ये इंसर्ट ऑन हो गया, ऐसा कुछ हो रहा होगा स्क्रीन में। हेलो? यस सर। हाँ यस सर, यस। हाँ, ये ऐसा हो रहा है तो प्रॉब्लम करता है, फिर आप इंसर्ट बटन को प्रेस कर दो, ऑफ कर दो, जैसे मैंने कर दिया अभी। देखो ऑन रहेगा, देन दैट प्रॉब्लम कम्स। इसको इंसर्ट को बंद करेंगे, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ बोलो, somebody is asking something. सर यस सर, सर WP लेक्चर है। क्या हुआ? WP? हाँ नो प्रॉब्लम, यू ऑल कैन गो फॉर WP, जस्ट वेट, लेट मी टेक डाउन द अटेंडेंस। किधर है तुम्हारा? So, बोलो सर। so practical lecture is there now today? Yes. I will update you what time I'm taking. What time this WP will get over? 1:30. Today I hope you all have understood everything. There is no doubt in this, right? किसी को कुछ डाउट है आज? सर मुझे सर है डाउट? हाँ सर, आप एक बार प्रोग्राम में जाएंगे फिर से? अभी बाद में आते हैं, बट अभी ये लेक्चर अटेंड कर लो, फिर आएंगे प्रैक्टिकल में, ठीक है? ठीक है। यस, नो प्रॉब्लम।